Hello, dear students. I am Alambert from GIC Mulakot, Champawat. I hope all is well with you and your family. As you know that schools and the colleges are closed due to COVID-19 pandemic. So I thought that to connect with you through e-learning classes. Today's video is on the topic tenses. The tenses are the most important part of English language. If you wish to write correct sentence or wish to say anything to anyone, you need to express the idea in the right form of tenses. I hope you will like this lesson. But if you don't, here are some ways you can tell me you don't like it politely. Let's get started. At first, the definition of tenses. Meaning, tenses are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. There are three tenses. Number one, the present tense. Number two, the past tense. Number three, the future tense. Now, present, past, and the future tense. These are the time of action. Number one, present tense. Now, elaborating this word. Present tense expresses an unchanging, repeated, or recurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Second one, past tense. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. Future tense. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. And the state of each of the three tenses has four forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and the time. These are also called the state of an action, indefinite. Number two, continuous or imperfect. Number three, perfect. Number four, perfect continuous. Now, the indefinite tense. Indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. Number two, the continuous or imperfect tense, that the action is still going on. Number three, the perfect tense indicates that the action is complete, finished, or perfect. Number four, perfect continuous tense. Perfect continuous tense indicates that the action began in the past and is still continuing. तो आपने देखा, ये दो चीज़ें देखी. सबसे पहली चीज़ आपने देखी टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन तीन तरीके के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और हर एक टाइम ऑफ एक्शन में फिर चार स्टेट ऑफ एक्शन है. जैसे अब मैं पहला यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन ले रहा हूँ. पहला टाइम ऑफ एक्शन है प्रेजेंट. प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन में हमें चार स्टेट मिलेंगी. कौन कौन सी स्टेट होंगी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो ये चार स्टेट हैं, ठीक इसी तरीके से किसी भी एक्शन की, एक्शन का मतलब यहाँ पर आप वर्ब समझ लो, क्रिया समझ लो, काम समझ लो, जो भी काम हो रहा है, जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, चलना, गो, रीड, राइट, स्लीप, सिंग. तो ये जो वर्ब हैं, ये जो वर्ब की किसी भी टाइम ऑफ एक्शन में चार स्टेट होंगी. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैं अभी एक वर्ब लेके मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम एक वर्ब ले लेते हैं गो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हमने एक वर्ब ले ली गो. तो इंडेफिनिट का मतलब यही है, जैसा कि अभी यहीं पर आपको इंडेफिनिट की मीनिंग ऊपर बताई भी थी कि इंडेफिनिट कहते किसको है. इंडेफिनिट डज नॉट इंडिकेट, the indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. ये पता नहीं होता कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, लेकिन
जिस काल का भी होगा उससे पता लगेगा कि उस टाइम ऑफ एक्शन का तो है, लेकिन उस टाइम ऑफ एक्शन में वो एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये क्लियर नहीं होता, इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट टेंस है। तो दूसरा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा लगेगा कि वो क्रिया चल रही है, वो काम चल रहा है। जैसे इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, गो से मैं आपको ले लेता हूं, जैसे प्रेजेंट में ले लेता हूं मैं, यही टाइम, यही जो स्टेट ऑफ एक्शन है ये प्रेजेंट में 4 के 4 यहाँ पर मैंने इनको दिखा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, जैसे मैं एक वर्ब ले रहा हूँ गो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने ये वर्ब लिया, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब मैं किस समय स्कूल जाता हूँ ये एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उसका। जैसे अब मैं कंटिन्यूस में कहूँगा इसी को, कंटिन्यूस में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो क्रिया, कंटिन्यूस का मतलब चल रही हो, जारी जारी है, जैसे कि वो क्रिया। मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ से आपको कैसा लग रहा है कि जा रहा हूँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जाने वाली जो क्रिया है वो चल रही है, बच्चा पैर उठा रहा है या मैं पैर उठा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस टेंस में मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बिलोंग करेगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे मैं कह रहा हूँ आपकी, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, जो वो वर्ब है मैं स्कूल जा चुका हूँ, वर्ब गो को ले रहे हैं, तो जाने वाली जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी अभी पूरी हुई है वर्तमान में जस्ट, तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा हूँ, कि कई देर से वो क्रिया चल रही है और अभी भी वो क्रिया जारी है। जैसे आपने देखा यहाँ डेफिनेशन में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल इज गोइंग ऑन। तो वो जो क्रिया है वो पास्ट से शुरू हुई है, मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा हूँ, पास्ट माने 10 मिनट पहले वो क्रिया शुरू हो चुकी है, अभी भी जा रहा हूँ, अभी भी स्कूल को जा रहा हूँ, तो वो क्रिया चल ही रही है, कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूइंग, अभी भी चल ही रही है वो क्रिया। तो प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि ये जो टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट टेंस था उसमें आपने देखा कि ये 4 स्टेट ऑफ एक्शन थी। ठीक इसी तरीके से पास्ट में भी 4 स्टेट ऑफ एक्शन आपको मिलेंगी। ये भी कौन कौन सी होंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे मैं स्कूल गया, मैंने एक सेंटेंस बोला मैं स्कूल गया, अब किस में गया, क्या गया ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन स्कूल गया ये पता लग रहा है कि पास्ट में हुआ था, गया, मैं स्कूल गया, उससे लग रहा है कि पास्ट में, भूतकाल में कभी स्कूल गया। तो अब कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं स्कूल जा रहा था, कैसा लग रहा है, जा रहा था से ऐसा लग रहा है कि उस पास्ट में वो क्रिया चल रही थी, जा रहा था, जाने की क्रिया चल रही थी, पैर उठा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो क्रिया चल रही थी। इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा फिर, मैं स्कूल जा चुका था, जा चुका था, जाने की क्रिया जो थी उसी में पूरी हुई थी, था, थे, थी लगने से हमें ये लग रहा है कि वो पास्ट टेंस का है, मतलब जो टाइम ऑफ एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन उस पास्ट में उस समय उस एक्शन की क्या स्टेट थी, क्या अवस्था थी, किस अवस्था में था वो एक्शन हमारा, क्या वो इंडेफिनिट था, या वो क्रिया कंटिन्यूअस थी, या परफेक्ट थी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा था, मतलब वो 10 मिनट तक की जो उसकी क्रिया थी वो परफेक्ट हो रही थी, और जा रहा था अभी भी जाने की क्रिया जारी थी, चल रही थी। तो अब इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हमारी बिल्कुल वही 4 स्टेट ऑफ एक्शन होंगे, और ये जो हमारा टाइम ऑफ एक्शन है तीसरा फ्यूचर टेंस, इसकी जो 4 स्टेट ऑफ एक्शन है वो तो सेम होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा फिर, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर में होनी है वो, जाऊंगा, अब किस समय जाएगा, क्या जाएगा ये क्लियर नहीं हो रहा है उसके साथ में, तो इसलिए उसको इंडेफिनिट कह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसी में फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, मतलब कि वो क्रिया फ्यूचर में चल रही होगी, जा रहा होऊंगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, यानी कि वो क्रिया फ्यूचर में कंप्लीट होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा होऊंगा, मतलब पीछे से चल रही होगी क्रिया और जारी भी रह रही होगी क्रिया। तो इस तरीके से फ्यूचर के 4 सेंटेंसेज हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको समराइज करा हुआ है, सब एक साथ आप देख सकेंगे इसको, और यही आपको याद करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे।
और इतना क्लियर भी नहीं होगा एक ही वीडियो में सारा, क्योंकि टेंस एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वैसे भी वीडियो 10 मिनट का होने जा रहा है। तो मैं यहीं पर इसको कंक्लूड करूंगा कि आप इसको कंप्लीट से याद करें। आपने देखा कि वर्ब का जो वर्ब टेंसेज जो है वो 3 तरीके के टाइम ऑफ एक्शन है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये टाइम ऑफ एक्शन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपने देखा कि टेंस होता क्या है, टेंस होता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ ए वर्ब होता है, यानी कि वर्ब की अवस्था ही होती है टेंस। लेकिन फॉर्म ऑफ ए वर्ब जो टेंस होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसकी दो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। जो फॉर्म ऑफ ए वर्ब है वो ये दिखाता है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एक्शन। मतलब वो टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ स्टेट ऑफ एक्शन भी दिखाता है। वो फॉर्म ऑफ ए वर्ब जो है, फॉर्म ऑफ ए वर्ब जो है वो 3 चीज़ें दिखाता है। नंबर 1, वो टाइम ऑफ एक्शन दिखाता है। 3 चीज़ें देखो, ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, वो क्रिया, वो जो काम है, वो जो क्रिया है। तो प्रेजेंट में भी आपने देखा कि 4 तरीके के होंगी उसकी अवस्थाएं, पास्ट में भी 4 तरीके की उसकी अवस्थाएं, स्टेट ऑफ एक्शन जो हैं वो 4 तरीके के होंगे और फ्यूचर में भी 4 होंगे। कौन कौन से होंगे वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में भी यही 4 अवस्थाएं होंगी उसकी काम की, उस क्रिया की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दूँ। प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस में एक वर्ब ले रहा हूँ यहाँ पे, गो वर्ब ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, तो गो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मैं अभी आज आपको हिंदी में ही ये सेंटेंसेस करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हिंदी में कैसे वो सेंटेंसेस बनते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आपका एक एक करके सिखाऊंगा इनको। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके, कंटिन्यूस टेंस लेके, परफेक्ट टेंस लेके, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लूँगा, फिर इसी तरीके से एक एक टेंस लूँगा और इनके रूल्स बताऊँगा कि इस टेंस का सेंटेंस होगा तो इस तरीके के सेंटेंस इस वाले स्टेट ऑफ एक्शन में आते हैं और इसकी ट्रांसलेशन के रूल्स ये हैं। तो ये एक एक करके लिया जाएगा, एक ही वीडियो में इसको कंक्लूड करना बहुत ही टफ है, तो इम्पॉसिबल समझ लो, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आप इतना बड़ा वीडियो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं सारे सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाता हूं। कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं स्कूल जा रहा हूं से पता लग रहा है कि वर्तमान का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं स्कूल 10 मिनट से जा रहा हूं। ऐसे ही पास्ट के भी 4 सेंटेंस बन जाएंगे। गोई वर्ब ले लेते हैं, वही वाली वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया कह दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमारी लैंग्वेज में हमें सूटेबल करता है उस तरीके से हमें कहना चाहिए। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा था। पास्ट परफेक्ट में मैं स्कूल जा चुका था से पता लग रहा है पास्ट का है, लेकिन स्टेट वही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा था। और फ्यूचर में मैं स्कूल, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। इंडेफिनिट है, किस में जाऊंगा, क्या जाऊंगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर का है, इसलिए इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, मैं स्कूल जाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। और फ्यूचर परफेक्ट में मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा होऊंगा। तो ये मैंने आपको जो सेंटेंसेस कराए, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग में एकदम क्लियर कर लेंगे। और इस तरीके से आप दूसरी वर्ब भी ले लेना, जैसे मैंने गो लिया, आप राइट भी ले सकते हो। राइट मीन्स लिखना। तो लिखने में क्या हो जाए, पहले आप हिंदी में ही इन बार के बार तरीके के सेंटेंसेस को दिमाग में क्लियर करना। तो इंग्लिश में मैं इनको फिर बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसलेशन इनको किया जाता है, वो एक एक करके मैं लूँगा। मेरी ये एपिसोड 1 है आज, इसके बाद एपिसोड 2, 3, 4, 5, 12 एपिसोड इसके बनेंगे। एक एक करके मैं टेंस लूँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में लगातार। यूट्यूब में भी आप मेरे चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राइट को ले लेते हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं 10 मिनट से या आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने एक पत्र लिखा,
पास्ट कंटिन्यूस में मैं एक पत्र लिख रहा था, पास्ट परफेक्ट में मैं एक पत्र लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा था। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मैं 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा होऊंगा। तो थैंक्स वेरी मच स्टूडेंट्स दैट यू हैव वॉच्ड सो केयरफुली माय वीडियो, और इसको आप लाइक करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से। ओके बाय।